ਇਮਾਰਤ ਕੇਸਰ-ਏ-ਹਿੰਦ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਕੇਸਰ-ਏ-ਹਿੰਦ ਪੁਲ ਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਨ 1887 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੰਨ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੋਖੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ। ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਲ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਕੋਚ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੁਹਾਣਾ ਸਫ਼ਰ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੰਦ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਊ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਖੋਲਤਾ ਆਹ ਦੇ ਖੋਲਤਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਹਾਂ ਜੁੱਤੇ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਪੇਪਰ 21 ਤੋਂ ਆ, 21 ਦਸੰਬਰ। ਇਹ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚੇ। ਬੈਠੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਨ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ? ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਇਹ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਈ ਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਹ ਦੇ LED ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਚ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਹੌਰ, ਕਸੂਰ, ਕੇਸਰ-ਏ-ਹਿੰਦ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ LED ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। AC ਟ੍ਰੇਨ ਆ, AC ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਆ। नमस्कार, मैं मुसाफिर अक्सर आपको एक सैर पर ले जाता हूं, जहां के रास्ते खुद ब खुद अपनी कहानियां बयां करते हैं। अब इन रुकी हुई पटरियों को देखिए, जिन्हें खुद किसी मंजिल की ख्वाहिश नहीं, पर न जाने कितने ही मुसाफिरों को उनकी मंजिल की गोद में छोड़ा। ट्रेन चलती वाली गाड़ी आवाज नहीं करती, ट्रेन वो कोयले की तारीफ से गर्म होकर गुस्से में लाल लाल होकर दौड़ने वाली गाड़ी अब बिजली के झटकों के चटखारे लिए
चलती रहती है। कभी सन 1843 में बरतानिया हुकूमत भारतीय रेलवे के लिए मनवाते हुए लॉर्ड डलहौसी ने कहां यह सोचा होगा कि ब्रिटिश राज की खिदमत और हिंदुस्तानियों पर सैनिक ताकत बढ़ाने के लिए बिछाई जा रही ये पटरियां एक दिन हिंदुस्तानियों की नब्ज की तरह काम करेंगी। पहले कभी व्यापार और सैनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली रेलवे धीरे धीरे आम हिंदुस्तानी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आज के हमारे इस सफर की एक धुंधली तस्वीर खींचते हुए कुछ बातें जो जहन में ताजा होती हैं, उनमें से एक है 1911 में शुरू हुई पंजाब मेल। मुंबई से पेशावर के बीच पड़ने वाले 37 छोटे बड़े स्टेशन पंजाब मेल कदे पेशावर तो चलती है बम्बे तक, ਜਿਹੜੀ कि हुण आजादी की लड़ाई से लेकर मुंबई कई तक चलती जुल्मों है। की विदाई तक इन रेल की पटरियों ने बहुत कुछ देखा और सुना है। तो हमारा सफर शुरू हो रहा है। आप इस समय पेशावर के ऐतिहासिक स्टेशन पर हैं। किसी पुराने जमाने में सनातनी सभ्यता और वेदों में इसे पुरुषपुरा नाम से जाना जाता रहा। यहां का इतिहास बहुत पुराना होने के नाते यहां बाकी सबके साथ ग्रीक, मौर्य, कुषाण के साथ और भी कई सभ्यताओं के सबूत मिलते रहते हैं। राजे रजवाड़ों, हुकूमतों और सल्तनतों की लड़ाई के बीच पेशावर आज के इतिहास में मशहूर रहा है गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले गफ्फार खान साहब के अहिंसक आंदोलन के लिए, जो उन्होंने बरतानिया हुकूमत के भेदभाव वाले कानून के खिलाफ किस्सा खवानी बाजार में किया और हुकूमत को वो कानून वापस लेना पड़ा। पेशावर के जायकों में बस जंग आजादी ही नहीं और भी जायके मशहूर हैं। यहां के मशहूर जायकों में आपको नमक मंडी कढ़ाई, दमपुख्त और चपली कबाब जैसी खास वानगियां दीवाना करने का मादा रखती हैं। बात दीवानगी की हो तो सिनेमा का जिक्र होगा ही। राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार हैं जिन्होंने पेशावर से मुंबई का सफर तय किया और सिनेमा के हर क्षेत्र में नए आयाम हासिल किए। खैर, सिनेमा और जायकों से आगे बढ़ते हैं और शाहदरा बाग को जान लेते हैं। मुगल कारीगरी और वास्तुकला के साथ रावी के किनारों की मिट्टी की महक आपकी रूह तक को खुश कर दिया करती है। शाहदरा बाग में मौजूद जहांगीर और नूरजहां का मकबरा इतिहास के एक बेहद खास दौर के गवाह हैं। अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और मजा लेते हैं इन लहलहाते खेतों का, जिन्हें देखकर मन तरोताजा होता है। शाहदरा बाग से थोड़ा आगे चलकर मिलती है ये जगह, ये लाहौर है। इस शहर के बारे में लोक भाषा में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसने तो जन्म ही नहीं लिया। कभी दिल्ली सल्तनत ने इसे लहनूर नाम से भी पुकारा था। सनातनी मान्यताओं को मानने वाले इसे लवपुर या लवपुरी कहा करते थे, जो राम सीता जी के पुत्र लव के नाम पर पड़ा। ये जगह कर्म भूमि है महाराजा रणजीत सिंह जी की और साथ ही गुरु श्री अर्जन देव जी की, जिनका समाधि स्थल डेरा साहिब गुरुद्वारा यहीं पर मौजूद है। लाहौर मशहूर हुआ लाला लाजपत राय के साइमन कमीशन के खिलाफ बगावत और उस लाठी चार्ज की घटना से, जिसमें वे शहीद हुए, और फिर भगत सिंह के उस आक्रोश की गवाही भी बना जब उन्होंने सैंडर्स को मारा। लाहौर में तमाम घटनाएं घटी हैं जिसने हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई है, और यही मौजूद है लाहौर सेंट्रल जेल।
आजादी के दीवाने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी, पर वो कहाँ जानते थे कि जलजले में पत्थर फेंकने से आग नहीं बुझती, शोले और भड़कते। हुआ भी ऐसा है और इस घटना ने आजादी की लड़ाई को धारदार कर दिया। तो अपने सफर को, जिसका नाम लव के ही भाई कुश के नाम पर पहले कशावर रखा गया और कशावर ही आगे चलकर बन गया कसूर, वो आपके लजीज खानों में आने वाली एक बेहतरीन खुशबू, जिस मसाले को हम कसूरी मेथी के नाम से जानते हैं, वो यहीं से चली है। खैर, बात सिर्फ मसालों की ही नहीं, थोड़ी खुदाया भी है। कसूर शहर मशहूर पीर बुल्ले शाह और बाबा फरीद चिश्ती का शहर है। कई पीरों की मजारों से रोशन इस शहर को पीरों का शहर भी कहा जाता है। इन गलियों में बुल्ले शाह के शेर के अशआर भारतीय संगीत की धुन में सराबोर होकर सुनने को जब भी मिलता है तो मानो रूह तक को सुकून मिल जाया करता है। कसूर में श्री मालजी साहब गुरुद्वारा भी है। गुरु नानक जी और भाई मर्दाना यहां आए थे और जिस पेड़ के नीचे वे बैठे थे उसे माल कहा गया, जिसके बाद यही बने गुरुद्वारे का नाम रखा गया श्री मालजी साहब। सिख मान्यताओं के अनुसार गुरुद्वारे में अभी भी वो पेड़ है जहां गुरु नानक जी बैठे थे। अब आप अपनी नजरों को दिलचस्प नजारों के साथ साथ इस ब्रिज पे भी रोशनी डालनी होगी। इसे कैसरे हिंद ब्रिज के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी के ऊपर से गुजरते इस ब्रिज का इतिहास यूं भी खास है क्योंकि कुछ वक्त के लिए इस पर पाकिस्तान का कब्जा रहा, पर 1971 की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान ने इस पर वापस अपना परचम लहरा दिया। अब जब आप यहां से गुजर ही रहे हैं तो बता दें कि अब आप इस सफर के एक बेहद खास पड़ाव पर हैं और ये है पंजाब के फिरोजपुर में लगता एक गांव जिसे लोग हुसैनी वाला के नाम से जानते हैं। इसका नाम एक मुस्लिम पीर गुलाम हुसैनी वाला के नाम पर आबाद है। यहाँ की आबो हवा में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करता हुआ शहीदी स्मारक है, पर आज यहाँ बनी समाधि अपने मुल्क की आजाद हवा में सांस लेते हुए मुस्कुराती है और ये वही जमीन है जहां से क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की आखिरी विदाई हुई। इस जमीन ने 65 और 71 के दर्द को भी बखूबी छेड़ा है। इसके बिल्कुल बराबर से लगता हुआ बॉर्डर के उस तरफ एक गांव है जिसका नाम एक सिख फौज में सरदार बहादुर रिसलदार मेजर गांधा सिंह दत्त के नाम से बतौर गांधा सिंह वाला रोशन है। बात जब सन 65 की हो ही रही है तो उससे कुछ साल पहले की भी हो जानी चाहिए। दरअसल बात है सन 1961 की। बंटवारे के वक्त इस हुसैनी वाला को पाकिस्तान में शामिल किया गया था। 12 गांव देकर हुसैनी वाला को हिंदुस्तान में मिला दिया था। अब जब आप इस ऐतिहासिक जगह पर पहुंच गए हैं तो आपको बता दें इस स्टेशन को साल में 2 बार खोला जाता है। 23 मार्च यानी शहीदी दिवस के दिन और 13 अप्रैल यानी बैसाखी के दिन। इस दौरान भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय हुसैनी वाला बॉर्डर पर विशाल मेला आयोजित किया जाता है। कई लोग शहीदी स्मारक के अंदर बने तालाब में नहाते हैं और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव जी की समाधि पर माथा टेकते हैं। यहां पर आने के बाद उन महान आत्माओं का यहां की मिट्टी और आबो हवा का शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा। आज आपका और हमारा साथ यही करता है, लेकिन ट्रेन का सफर कभी नहीं रुकता। बॉलीवुड के अनगिनत सितारों को इस ट्रेन ने उनकी मंजिल तक पहुंचाया है और आज हम भी रुपहले पर्दे के उन सितारों की यात्रा को कुछ हद तक महसूस
महसूस कर पाए। ये मुसाफिर जल्द ही किसी और सफर पर आपको ले चलेगा और वहां के किसी और किस्से से आपका वक्त गुलजार करेगा। धन्यवाद। ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ LED ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ BSF ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਰੇਂਜਰਜ਼ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ।